श्री पद्मावती देव्यै नमः। मातर नमामि कमले कमलायदाक्षी श्री विष्णु हृत्कमलवासिनी विश्वमातग क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भगौरी लक्ष्मी वेंकटेशं शरणं प्रपद्ये प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवास अनुकंपयां इक्षुषारस्रवं दैव तन्मूर्त्या शकरायिरम् समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शङ्खचक्रगदाधरं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये अमृतात्मादमेघावम् अमृताहरणं विभुं पाञ्चरात्रागमाचार्यं वन्दे वैकुण्ठभूपतिम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यश्च तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहि वृधीमहि च तत्र आद्यौ దంపతి జగదాంపతి. అందరూ ఒకసారి మీ తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి, అలమేల్మంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు చేసుకోండి. అలమేలుమంగ వరద గోవింద గోవింద. ప్రాణాయామ విధానం తెలిస్తే ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. प्राणायाम विधान தெரிஞ்சால் प्राणायाम मन्निंगो संकल्प मुद्रड़े उकारेंगो. आपको प्राणायाम जानते हैं तो प्राणायाम कीजिए, संकल्प मुद्रा में बैठिए. తెలియకపోతే చేతులు జోడించి అమ్మవారికి నమస్కరించి కూర్చోండి. తెలియాద వాళ్ళ కై కూపిటి పెరుమాళ ప్రార్థన పనికొంగో. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. गोविन्द गोविन्द गोविन्द. अद्य श्रीभगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरे उत्तरदिग्भागे पद्मसरोवरी तीर्थसमीपे शुकपुरी अग्रहारे वर्तमाने व्यवहारिकचान्द्रमाणेन प्रभवादि षष्ठिश्रीविजयाप्यदे नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकर पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे नवम्यां शुभतिथौ वासरः स्थिरवासरयुक्तायाम् उत्तराषाढानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పిల్లలు, భార్యా పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి. ಎಲ್ಲರೂ உங்கள் பேரு கோத்திரம் எல்லாமே சங்கல்பம் பண்ணிக்கோங்க. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. आपका गोत्र नाम संकल्प कीजिए. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुष अर्थ सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहनान् अभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्व कार्यान् अनुकूल सिद्ध्यर्थं महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष
సిద్ధ్యర్థం విశేషతః మీరు ఏ కోరికతో అయితే మొక్కుబడి కానీ కోరిక కానీ దేనికోసమైతే అమ్మవారికి ఈ కళ్యాణోత్సవ సేవను చేయిస్తున్నారో ఆ కోరికను ఒకసారి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த விஜாபனை உங்கள் மனசில் பிரார்த்தனை ஏதாவது இருந்தால் அது தாயாருக்கு ஒரு வாட்டி விஜாபனம் பண்ணுங்க. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव सेवा कर रही है उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए. చెప్పండి మమ మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అలర్మేల్ మంగ సమేత శ్రీనివాస నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య అనేన సహాయేన కారయిష్యే. అందరూ ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేల మంగ వరద గోవింద గో. அத்தக அண்ட சராங்களிலும் ஜெகன்மாதாவான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார் மாதர் குலத்துக்கே தலைவி. பக்தர்களே, அந்த பத்மாவதி தாயாரே அந்த மகாலட்சுமியின் அவதாரம். அந்த தாயாருக்கு அவளது மணாளரான சீனிவாச பெருமானோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. திருமலையானுக்கு உகந்த நாள் சனிக்கிழமை. அதே சனிக்கிழமை அவரது பிராணேஸ்வரியான ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கும் உகந்த நாள்தானே. பக்தர்களே, இந்த நன்னாளில் இந்த ஆதி தம்பதிகளை தரிசித்து திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி நடைபெறுகின்ற திருக்கல்யாணத்தில் முதலில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இனி அடுத்து கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் ஆகியவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நடைபெற உள்ளது. நாம் வேத ஒலிகளுடனும் வாத்திய ஒலிகளுடனும் அதை இப்போது நாம் தரிசிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, தாயாரின் திருமார்பில் கவனித்தோமானால் சீனிவாசரின் திருவுருவம் பதித்த ஒரு ஹாரம் இருக்கும். அதே போல எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தை பார்ப்போமானால் தாயார் இருக்கும்படியான அந்த ஹாரத்தை அவர் அணிந்திருப்பார். ஆக இருவரும் அவிபக்த ஆத்மா, இணைப்பிரியாத தம்பதிகள். சூரியனும் ஒளியும் போல, பூவும் மனமும் போல, மணியும் ஒலியும் போல, இப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆயினும் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். அப்படி இருக்க எம்பெருமான் மலையிலும் தாயார் திருச்சானூரிலும் கொலுவிருக்க காரணம் என்ன? இதற்கு ஒரு வேடிக்கையாக ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த காலத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இருவரும் வேலைக்கு சென்று சம்பாதிக்கிறார்கள். எதற்காக? தங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்துக்காக. அவர்களது படிப்பு, விவாகம், இப்படி காரணங்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். கணவன் ஒரு ஊரிலும் மனைவி ஒரு ஊரிலும் கூட இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட வருகிறது. அதே போல இந்த கலியுகத்தில் எத்தனையோ சிரமங்களுக்கு உள்ளாகும் குழந்தைகளான நமக்காக நமக்கு உங்கள் திருவருளை தருள தாயாரும் எம்பெருமானும் சங்கல்பம் பூண்டுள்ளார்கள். ஆகவேதான் எம்பெருமான் மலையிலும் தாயார் திருச்சானூரிலும் தனியாட்சி செய்து கொண்டு அந்த பக்தர்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அந்த பணத்தை கொண்டு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் எத்தனையோ நல்ல காரியங்களையும் தர்ம காரியங்களையும் செய்கிறதல்லவா. கோவிலும் சரி, வெளியிலும் சரி, எவ்வளவு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு, அன்னதானம், அது மட்டும் அல்ல, வேத பாடசாலை, கோ சம்பிரக்ஷனை, ஏன் நமது ஸ்ரீ இந்த வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியை கூட எடுத்துக்கொண்டால் இந்த தொலைக்காட்சி மூலம் உலகத்தில் எங்கெங்கேயோ இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவரும் எம்பெருமானுக்கும் தாயாருக்கும் நடைபெறுகின்ற இந்த உற்சவங்களையும் கல்யாண உற்சவங்களையும் தரிசிக்கும் பாக்கியம் கிடைக்கிறதல்லவா. ஆக இவை அனைத்துக்கும் தேவையான செல்வத்தை இவர்கள் இருவரும் தனித்தனியே இருந்து சேமிப்பதாக கூட கொள்ளலாம். இருந்தாலும் இரவில் எம்பெருமான் திருமலையிலிருந்து தாயாரை காண திருச்சானூருக்கு இறங்கி வருவதாக கூட ஒரு ஐதீகம் உள்ளது. அவ்வளவு ஏன், இந்த தாயாரின் பிரம்மோற்சவ சமயத்தில் பெருமாள் தாயாரோடையே இணைந்து பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்கிறாராம். அதனால்தான் முன்காலத்தில் இங்கே திருச்சானூரில் பிரம்மோற்சவம் நடக்கும்போது திருமலையில் அவ்வளவாக கூட்டமே இருக்காதாம். பக்தர்கள் எல்லோரும் திருச்சானூரில் வந்து கூடிவிடுவார்களாம். ஏன்? இருவரையும் ஒன்றாக சேவித்து அவர்களின் திருவுருளை பெறலாம் என்பதற்காக. ஆக ஸ்ரீ என்கிற அந்த தாயார் மகாலட்சுமி, அவளே நமது இந்த அலமேலு மங்கை தாயார். இந்த ஸ்ரீயை முன்னிட்டு கொண்டுதான் பகவானை ஸ்ரீகாந்தன்,
ஸ்ரீதரன், ஸ்ரீநாதன் என்றெல்லாம் வேண்டுகிறோம் அல்லவா? ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனால் ரங்கநாதரை சேவிக்க வேண்டுமானால் 7 பிரகாரங்களை தாண்ட வேண்டும். ஆனால் தாயாரை சேவிக்க வேண்டுமானால் சீக்கிரம் போய் சேவித்துவிட்டு வந்து விடலாம். மகாலட்சுமியின் அருள் நமக்கு உடனே கிடைத்துவிடும். திருமலை திருப்பதி யாத்திரை வந்தாலும் திருவேங்கடமுடையானை சேவிக்க மலையேறி போக வேண்டும். அதுவும் அந்த தரிசனமும் சுலபத்தில் கிடைக்காது. ஆனால் தாயார் இதோ கீழேயே திருச்சானூரிலேயே கொலுவிருப்பதால் எளிதில் சேவிக்க முடிகிறதல்லவா? தாயாருக்கு அத்தனை காருண்யம் நம்மீது. ஸ்ரீ என்கிற அந்த பதத்துக்கே பொருள் என்ன தெரியுமா? நெருங்கி இருக்கிறாள். कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्य यनेः विभागहृतश्च्युतः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगोहितम् तेन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु वा राजापत्यं पवित्रम् ततोऽद्यामकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतगे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषज तन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. பக்தர்களே, தாயாரை எளிதில் சேவிக்க முடிகிறதல்லவா? அந்த அளவுக்கு தாயாருக்கு நம்மீது காருண்யம். அந்த ஸ்ரீ என்கிற பதத்துக்கே நெருங்கி இருக்கிறாள் என்றுதான் பொருள். நாம் நமது குறைகளை சொல்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எல்லா குறைகளிலும் முகம் சுளிக்காமல் பொறுமையாக கேட்டுக்கொள்கிறாளாம். அதனால்தான் இவள் சிறுநோத்தி, புருஷகாரம் என்பார்கள். அப்படி நாம் சொல்லும் அந்த குறைகளை எல்லாம் பெருமாளிடத்தில் ஏகாந்தமாக இருக்கும்போது, அதுவும் எப்படி அவர் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது அவரிடம் நமது குறைகளை எல்லாம் அழகாக எடுத்துச் சொல்லி நம் மீது கருணை ஏற்படும்படி செய்வாளாம். இதனால்தான் அவள் ஸ்ராவயத்தி, அதாவது கேட்க வைப்பவள். அடுத்து தாயாரின் திருவடிகளை பணிந்தோமானால் அந்த திருவடியே நம்முடைய தோஷங்களை எல்லாம் போக்கிவிடுவாம். இந்த தோஷத்தை நீக்கி நம்மை குற்றமற்றவராக ஆக்கி எம்பெருமானிடம் அனுப்புகிறாள். பகவானின் அனுக்கிரகம் நமக்கு கிடைக்க பண்ணுகிறாள். ஆகவே இந்த ஸ்ரீ என்கிற அந்த பதத்துக்கு இத்தனை வகையான பெருமைகள் உண்டாம். பக்தர்களே, அந்த தாயாரைத்தான் இதோ இப்போது நாம் இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கமலா காந்தா காருண்ய கங்கா பிளாவித மத்விதான், அதாவது பெருமாளுக்கு ஏற்றம் கமலத்தில் வீற்றிருக்கும் தாயாரால், தாயாருக்கு ஏற்றம் பெருமாளால். இந்த தாயாருக்கும் தயை உண்டு, அவளுடைய மணாளனாகிய திருவேங்கடமுடையானுக்கும் தயை உண்டு. அதிலும் அது இருவருமே சேர்ந்திருக்கும் போது அந்த விசேஷம் எவ்வளவு மடங்காக அதிகமாகும். பங்கயத்தால் திருவருளும் எம்பெருமான் திருவருளும் நம்மீது ஒரு சேர பொழிய நாம் எத்தனை பாக்கியம் செய்திருக்கிறோம் பாருங்கள். அந்த பாக்கியம் இதோ இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் நமக்கு கிட்டியிருக்கிறது. கிருத்தயுகத்தில் இவள் ஆதிலக்ஷ்மி, திரேதா யுகத்தில் இவள் மகாலட்சுமி, துவாபர யுகத்தில் கஜலக்ஷ்மி, இப்போது இந்த கலியுகத்திலோ இவள் குறைகளையெல்லாம் போக்கும் வைபவலக்ஷ்மி, அலர்மேல் மங்கை. இந்த கலியுகத்தில் தியானம், ஹோமம், தபஸ் இவற்றை எல்லாம் விட எளிமையானது நாமஸ்மரணை. ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அருளை பெற அவளுடைய திருநாமங்களை நாம் உண்மையான பக்தியுடன் வாய்விட்டு சொன்னாலே போதும். மகாலட்சுமி, ரமா, வித்யா, ஸ்ரீவரத ஹரிவல்லபா,
கருடவாகினி, பிரம்மஜனனி, சம்பத் பிரதாயினி, ஸ்ரீசக்கரவாசினி, மகா பிரகிருதி ஸ்வரூபினி, இப்படி அவளது திருநாமங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். तस्य वै सोमस्य वासप्रतिजग्रहुषः तृतीयमिन्द्रियस्यापाक्रामत् तदेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै स तृतीयमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ता तृतीयमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् वासप्रतिगृह्णाति अथ यो विद्वान् प्रतिगृह्णाति तृतीयमस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै रुद्रस्य गां प्रतिजग्रहुषः चतुर्थमिन्द्रियस्यापाक्रामत् तामेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै चतुर्थमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ता चतुर्थमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् गां प्रतिगृह्णाति अथयो विद्वान् प्रतिगृह्णाति चतुर्थमस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै वरुणस्यास्त्वं प्रतिजग्रहुषः पञ्चममिन्द्रियस्यापक्रामत् तमेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै स पञ्चममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ता पञ्चममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् प्रतिगृह्णाति अथयो विद्वान् प्रतिगृह्णाति पञ्चममस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै प्रजापते पुरुषं प्रतिजग्रहुषः षष्ठमिन्द्रियस्यापक्रामत् तमेतेनैव प्रत्यगृह्णाति तेन वै षष्ठमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ता षष्ठमिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् पुरुषं प्रतिगृह्णाति अथयो विद्वान् प्रतिगृह्णाति षष्ठमस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वै मनोस्तल्पं प्रतिजग्रहुषः सप्तममिन्द्रियस्यापक्रामत् तमेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै स सप्तममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ता सप्तममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वागस्तल्पं प्रतिगृह्णाति अथयो विद्वान् प्रतिगृह्णाति सप्तममस्येन्द्रियस्यापक्रामति तस्य वा उत्तानस्याङ्गीरसस्य प्राणप्रतिजग्रहुषः अष्टममिन्द्रियस्यापक्रामत् तदेतेनैव प्रत्यगृह्णात् तेन वै सोऽष्टममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ता अष्टममिन्द्रियस्यात्मन्नुपाधत्ते एवं विद्वान् प्राणप्रतिगृह्णाति अथयो विद्वान् प्रतिगृह्णाति अष्टममस्येन्द्रियस्यापक्रामति यद्वागणित तत्सर्वमुत्थान एवाङ्गीरसप्रत्यगृह्णात् हरेण प्रतिगृहीतन्नाहिनत् प्रतिगृह्णीयात् तत्सर्वमुत्थानस्वाङ्गीरसप्रतिगृह्णात् प्रतिगृह्णीयात् इयं वा उत्थानाङ्गीरसः अनयैवेन प्रतिगृह्णाति नैनगो हिनस्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसहोदारस्तत्रमासदा केन ते गृहपतिना भवन् तेन प्रजा असुजन्तेति प्रजापतिनामैते गृहपतिना भवन् तेन प्रजा असुजन्ता यच्चतुर्होदारस्तत्रमासदा केन ते गृहपतिना भवन् केन औषधीरसुजन्तेति सोमेन वैते गृहपतिना भवन् तेन औषधीरसुजन्ता यत्पञ्चहोदारस्तत्रमासदा केन ते गृहपतिना भवन् केनैभ्यो लोकेभ्यो सुरान् प्राणदन्ता केनैषां पशूनमृञ्जतेति अग्निना वैते गृहपतिना भवन् केनैभ्यो लोकेभ्यो सुरान् प्राणदन्ता केनैषां पशूनवृञ्जता यक्षोदारस्तत्रमासदा केन ते गृहपतिना भवन् केनक्तो न कल्पयन्तेति
धात्रा वैदे गृहपतिना भवन् तेन टो न कल्पयन्त यत्सप्तहोदानसप्तमासता तेन ते गृहपतिना भवन् तेन सुवरायन् तेनेमान् लोकान् समतन्वन्निति अर्यम्ना वैदे गृहपतिना भवन् तेन सुवरायन् तेनेमान् लोकान् समतन्वन्निति एते वै देवा गृहपतयः तानय एवं विद्वान् अप्यन्यस्य गृहपते दीक्षते वान्तरमेव दक्षिणामृध्नोति यो वा अर्यमणं वेद दानकामास्मै प्रजा भवन्ति यज्ञो वा अर्यमा आर्यावसति वैतमाहुर्यं प्रसगुंसन्ति आर्यावसतिर्भवति य एवं वेद यद्वा इदं किञ्च तत्सर्वं चतुर्होतारः चतुर्होतृभ्योऽधियज्ञो निर्मितः स य एवं विद्वान् विवदेत अहमेव भूयो वेद यश्चतुर्होत्रेण वेदेति सत्येव भूयो वेद यश्चतुर्होत्रेण वेद यो वै चतुर्होतृणागोहोत्रेण वेद सर्वासु प्रजास्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयति प्रजापतिर्वैदसहोतृणागं होता सोमश्चतुर्होतृणागं होता अग्निपञ्चहोतृणागं होता धाता षड्होतृणागं होता अर्यमा सप्तहोतृणागं होता एते वै चतुर्होतृणागं होतारः आनय एवं वेद सर्वासु प्रजाः सन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयति प्रजापति प्रजा सृष्टाव्यस्रगं सदा सहृदयं भूतोऽसयत् आत्मनः इत्यक्वयत् आवप्रत्यशृण्वन् आग्निहोत्रेणैव यज्ञकृतनामपर्यावर्तन्त ताः कुसिंहमुपोहन् तस्मादग्निहोत्रस्य यज्ञकृताः एकऋत्विके तिरस्कृत्वा क्वयत् अग्निर्वायुरादित्यचन्द्रमाः ते प्रत्यशृण्वन् ते दर्शपूर्णमासाभ्यामेव यज्ञकृतनामपर्यावर्तन्त तवोपहग्रश्चत्वारि अङ्गानि तस्मात् दर्शपूर्णमासयोः यज्ञकृतोः चत्वारि ऋत्विजः पञ्चकृत्वा क्वयत् वसवः प्रत्यशृण्वन् एकादुर्मास्यैरेव यज्ञकृतनामपर्यावर्तन्त तवोपहल्लोमशवे भागं समस्थिमज्ञानम् अस्मात् चातुर्मास्यानाः यज्ञकृतोः पञ्चत्रिजः षट्कृत्वा क्वयत् ऋतवः प्रत्यशृण्वन् तेनैव यज्ञकृतनामपर्यावर्तन्त तवोपहस्तनमाण्डौ शिष्णमवाञ्चं प्राणम् अस्मात् पशुबन्धस्य यज्ञकृतोः षड्ऋत्विजः सप्तकृत्वा क्वयत् होत्रा प्रत्यशृण्वन् सा सौम्येनैवाधरेण यज्ञकृतनामपर्यावर्तन्त तावुपोहन् सप्तशीर्षण्यान् प्राणान् तस्मात् सौम्यस्यात् हरस्य यज्ञकृतोः सप्तहोत्रा प्राचीर्वशः कुर्वन्ति दशकृत्वा क्वयत् तव प्रत्यशृणोत् तत्कर्मणैव संवत्सरेण सर्वैर्यज्ञक्रतुभिरुपपर्यावर्तत तत्सर्वमात्मानमुपरिवर्गमुपौहत् तस्मात् संवत्सरे सर्वे यज्ञकृतवोऽवरुध्यन्ते तस्मात् दशहोता चतुर्होता पञ्चहोता षट्होता सप्तहोता एकहोत्रे बलिगं हरन्ति हरन्त्यस्मै प्रजाबलिम् ऐनमप्रतिख्यातं गच्छति य एवं वेद प्रजापति पुरुषमसृजत सोऽग्निरब्रवीत् ममायमन्नमस्ति
स्वविभेद सर्वं वै मायं प्रधक्षतीति सेतागच्छद्रोहद्रेणात्मस्मरणानवस्यते तानजुहोद तैर्वै स आत्मानमस्पृणात् तदग्निहोत्रं जुहोति एकहोदानमेव तद्यज्ञकृतमाग्निहोत्रं सुविन्धं चात्मनः स्पृणोति आदित्यं गच्छति तदुरन्नयति तदुरहोदानमेव तद्यज्ञकृतमाप्नोति दर्शपोर्णमासौ चत्वारि चात्मनाङ्गानि स्पृणोति आदित्यस्य तदायुज्यं गच्छति चतुरन्नयति समित्पञ्चमी पञ्चहोदारमेव तद्यज्ञकृतमाप्नोति चातुर्मास्यानि लोमछवीर्माकं समस्य मध्याह्नं तानि चात्मनः स्पृणोति आदित्यस्य तदायुज्यं गच्छति चतुरुन्नयति द्विजुहोति षड्होदारमेव तद्यज्ञकृतमाप्नोति पशुबन्धं स्तनाभाण्डवशिष्णुमवाञ्चं प्राणं तानि चात्मनः स्पृणोति आदित्यस्य तदायुज्यं गच्छति चतुरुन्नयति द्विजुहोति सप्तमी सप्तहोदारमेव तद्यज्ञकृतमाप्नोति सौम्यमद्धरं सप्तचात्मनः शीर्षण्यान् प्राणान् स्पृणोति आदित्यस्य तदायुज्यं गच्छति चतुरुन्नयति द्विजुहोति द्विन्निमार्ति द्विप्राश्नाति सहोदारमेव तद्यज्ञकृतमाप्नोति संवत्सरं सर्वं चात्मानमपरिवर्गस्पृणोति आदित्यस्य च सायुज्यं गच्छति। பக்தர்களே, எப்பெரும் தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது கன்னியாதான நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்களே, லக்ஷ்மி என்ற பதத்துக்கு இலக்கண ரீதியாக பல அருட்சக்தி அடையாளங்கள் உள்ளன. அந்த அருட்சக்திகளே தியானம், ஐஸ்வர்யம், சுகம், ஆரோக்கியம், தனம், தானியம், ஜெயம் என்று கூறப்படுகின்றன. இதன் தொடர்பாகவே தாயாருக்கு ஸ்ரீ அஷ்டலக்ஷ்மிகள் என்றும் வழங்கப்படுகிறது. எல்லோரையும் வாழ்த்தும் போது 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று பெரியோர்கள் வாழ்த்துவார்கள் அல்லவா? அந்த 16 பேர்கள்தான் என்ன? தனம், வித்யா, தானியம், வீரம், சௌபாகியம், சந்தானம், விஜயம், பதவி, உத்தியோகம் என்கிற அஷ்டலக்ஷ்மிகளோடு சேர்ந்து அனிமா, மகிமா, கரிமா, லகிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசித்வம், வசித்வம் எனும் அஷ்டமகா சக்திகளும் இதில் அடங்கும். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த அஷ்டமகா சக்திகள் என்னவென்று தெரியுமா? அனிமா என்றால் அணுவைப் போல தன்னை சிறியதாக்கிக் கொள்வது. மகிமா அப்படி என்றால் எல்லையல்லாமல் ரூபத்தை பெருக்கிக் கொள்வது. லகிமா தன்னை மிகவும் லேசாக்கிக் கொள்வது. கரிமா தன்னை மிகவும் கனமாக்கிக் கொள்வது. பிராப்தி இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் தேவதையாக விளங்குவது. பிராகாமியம் இந்திரியங்களுக்கு புலப்படும் வஸ்துக்கள், புலப்படாத வஸ்துக்கள் இவற்றை ஒன்றாக அனுபவிப்பது. ஈசித்துவம் அத்தனை பிராணிகளின் சக்திக்கும் அதிதேவதையாக விளங்குவது. வசித்துவம் எதிலும் பற்றில்லாமல் இருப்பது. இப்படி இந்த அத்தனை சித்திகளும் இந்த தாயாரை பிரார்த்தித்தால் தாயார் அருளுவாள் என்று கூறப்படுகிறது. இவையே அந்த 16 பேர்களாகும். பக்தர்களே, அந்த தாயாரை நாமும் இப்போது சேவித்து மகிழ்வோம். ஆதிலக்ஷ்மி நமஸ்தேஸ்து பரபிரம்ம ஸ்வரூபிணி யச்சோ தேகி தனம் தேகி சர்வ காமாம்ச தேகிமே. பரபிரம்மஸ்வரூபிணியான ஆதிலக்ஷ்மியே நமஸ்காரம், புகழை கொடு, எங்களது விருப்பங்களை பூர்த்தி பண்ணு என்று இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில், அதிலும் இந்த கன்னியாதான சமயத்தில் அந்த தாயாரை நாம் இருகரம் கூப்பி வேண்டுவோம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அருட்கடாட்சம் நம் அனைவருக்கும் அவசியமல்லவா? ஆகவே இதோ இப்போது அந்த செல்வத்தின் அரசியான அந்த மகாலட்சுமி தாயாரை இருகரம் கூப்பி சேவித்து நமது பிரார்த்தனைகளை நாம் சொல்வோம்.
அனைத்து செல்வங்களையும் இழந்த தேவேந்திரன் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை துதித்து அவளது கடாட்சத்தை பெற்று மீண்டும் நீங்காத செல்வங்களை பெற்றதாக ஸ்ரீ தேவி பாகவதம் கூறுகிறது. அதே போல கனகதாராஸ்தவம் என்பது ஒரு பிரசித்தமான துதி. ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதாள் ஒரு ஏழை அந்தனை பெண்மணிக்காக பாடி ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் கடாட்சத்தை பெற்று தங்கக் கனிகளாகவே அந்த இல்லத்தில் மாரியாக பொழிந்தது. எப்படிப்பட்ட அருட்சக்தி வாய்ந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா? அந்த ஸ்லோகம் நம்மால் தினமும் தாயாருக்கு முன்னால் இதை அனுசந்தித்தோமானால் நமக்கு எல்லா செல்வங்களும் பெருகும் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. அதே போல ஸ்ரீஸ்துதி, இது ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகரால் இயற்றப்பட்டது. இதுவும் மிக பிரபலமான சோஸ்திரம். அருட்செல்வம், பொருட்செல்வம் அனைத்தையும் நமக்கு பெற்றுத்தர உள்ளது. ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் பக்தி பரவசம், பொருட்செறிவு, அருள்வாக்கு அனைத்தையும் உள்ளதாம். அடுத்தது ஸ்ரீசூக்தம். இது வேத பிரமாணம், அதாவது பிராச்சீனமானது. திருமஞ்சனத்தின் போது புருஷ சூக்தத்துடன் இணையாக ஓதப்படுவது இந்த ஸ்ரீசூக்தம். இதிலும் 16 ரிக்குகளை கொண்ட ஷோடச உபச்சார பூஜைகள் செய்வது ஒரு பக்தியான கிரமம். तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वं य एवं मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद मनस्वेव भवति नैनं मनुज्जहाति तस्मै मनुष्यान् सदृजानाय दिवा देवत्रा भवते तदनु देवानसृजत तद्देवानां देवत्वं य एवं देवानां देवत्वं वेद दिवा हैवास्य देवत्रा भवति तानि वा एतानि चत्वार्यं भागंसि देवा मनुष्याः पितरोऽसुराः तेषु सर्वेष्वम्भो नभैव भवति य एवं वेद ब्रह्मवादिनो वदन्ति यो वा इमं विद्यात् यतोऽयं पवते यदभिपवते यदभिसम्पवते सर्वमायुर्यात् न पुरायुष प्रमीयेत पशुमान् स्यात् विन्देत प्रजां यो वा इमं वेद यतोऽयं पवते यदभिपवते यदभिसम्पवते सर्वमायुरेति न पुरायुष प्रमीयते पशुमान् भवति विन्दते प्रजाम् अभ्यः पवते अपोऽभिपवते अपोऽभिसम्पवते अस्याः पवते इमामभिपवते इमामभिसम्पवते अग्नेः पवते अग्निमभिपवते अग्निमभिसम्पवते अन्तरिक्षात् पवते अन्तरिक्षमभिपवते अन्तरिक्षमभिसम्पवते आदित्यात् पवते आदित्यमभिपवते आदित्यमभिसम्पवते द्योपवते दिवमभिपवते दिवमभिसम्पवते दिग्भ्यः पवते दिशोऽभिपवते दिशोऽभिसम्पवते स यत्पुरस्ताद्वाति प्राण एव भूत्वा पुरस्तादि तस्मात् पुरस्ताद्वान्तम् सर्वा प्रजा प्रतिनन्दन्ति प्राणो हि प्रियः प्रजानां प्राणैव प्रियः प्रजानां भवति य एवं वेद स वा एष प्राण एव अथ यद्दक्षिणतो वाति मातरिष्वैव भूत्वा दक्षिणतो वाति तस्मात् दक्षिणतो वान्तं विद्यात् सर्वादिश आवाति सर्वादिशो न विवाति सर्वादिशो न संवातीति स वा एष मातरिष्वैव अथ यत्पश्चाद्वाति पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति पूतमस्मा आहरन्ति पूतमुपहरन्ति पूतमश्चादि य एवं वेद स वा एष पवमान एव अथ यदुत्तरतो वाति सविदैव भूत्वोत्तरतो वाति सविदैव स्वानां भवति
य एवं वेद स वा एष सविदैव ये येनं पुरस्तादायन्तमुपवदन्ति एवास्य पुरस्तात् पाप्मानः तागस्ते बघ्नन्ति पुरस्तादितरान् पाप्मनः सचन्ते अथ येनं दक्षिणत आयन्तमुपवदन्ति एवास्य दक्षिणतः पाप्मानः तागस्ते बघ्नन्ति दक्षिणत इतरान् पाप्मनः सचन्ते अथ येनं पश्चादायन्तमुपवदन्ति एवास्य पश्चात् पाप्मानः तागस्ते बघ्नन्ति पश्चादितरान् पाप्मनः सचन्ते अथ येनमुत्तरत आयन्तमुपवदन्ति एवास्योत्तरत पाप्मानः तागस्ते बघ्नन्ति उत्तरत इतरान् पाप्मनः सचन्ते तस्मादेवं विद्वान् वीवनृत्येत् प्रेवचलेत् यस्यैवाक्षौ भाषेत मन्त्रयेदिव प्रार्थयेदिव शृङ्गायेदेव उतमोपवदेयुः उतमे पाप्मानमुपहन्युरिति स यान्दिशगं सनिमेष्यान् स्यात् यदा तान्दिसंवादो भायात् अथ प्रवेयात् प्रवाधावयेत् सातमेव तदिदं व्यूढं गन्धमभिप्रच्यवते आस्यतञ्जनपदं पूर्वाकीर्तिर्गच्छति दानकामास्मै प्रजा भवन्ति य एवं वेद प्रजापतिस्वमगं राजानमसृजतां तन्द्रयो वेद अन्वसृज्यन्त आनहस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सोमगं राजानञ्चकमे श्रद्धामुसचकमे साहरितरं प्रजापतिमुपससार तगं होवाच नमस्ते अस्तु भगवः उपत्वायानि प्रत्वापद्ये सोमं वै राजानं कामये श्रद्धामुसकामयतैः गुहस्थागरमलङ्कारं कल्पयित्वा दशहोदारं पुरस्तात् व्याख्याय चतुर्होदारं दक्षिणतः पञ्चहोदारं पश्चात् षड्होदारमुत्तरतः सप्तहोदारमुपरिष्टात् सम्भारैश्च पत्नीभिश्च मुखे लङ्कृत्य आस्यार्थं वव्राज तागं होदीक्ष्योवाच उपमावर्तस्वेति तगं होवाच भोगन्तुम आचक्ष्व एतन्म आचक्ष्व यत्ते पानाविति तस्या भोत्रीन् वेदान् प्रददौ तस्मादुह स्त्रियो भोगमैव हारयन्ते स यः कामयेत प्रियस्यान्निति यं वा कामयेत प्रियस्यादिति तस्मादेतग्स्थागरमलङ्कारं कल्पयित्वा दशहोदारं पुरस्तात् व्याख्याय चतुर्होदारं दक्षिणतः पञ्चहोदारं पश्चात् षड्होदारमुत्तरतः सप्तहोदारमुपरिष्टात् सम्भारैश्च पत्नीभिश्च मुखे लङ्कृत्य आस्यार्थं व्रजेत् प्रियो हैव भवति ब्रह्मात्मन्वदसृजत तदकामयत समात्मना पद्येयेति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै दशमगं होत प्रत्यशृणोत् स दशहोतो भवति दशहोतो हवैनामेषः तं वा एतं दशहोतकं सन्तं दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमगं होत प्रत्यशृणोत् स सप्तहोतो भवति सप्तहोतो हवैनामेषः तं वा एतकं सप्तहोतकं सन्तं सप्तहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः
आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै षट्ठगमहोतप्रत्यशृणोत् स षड्ढोतो भवत् षड्ढोतो हवैनामैषः सम्मायेतकं षड्ढोतकं सन्तम् षड्ढोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगमहोतप्रत्यशृणोत् स पञ्चहूतो भवत् पञ्चहूतो हवैनामैषः सम्मायेतं पञ्चहूतकं सन्तम् पञ्चहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै चतुर्थगमहोतप्रत्यशृणोत् स चतुर्होतो भवत् चतुर्होता हवैनामैषः सम्मायेतं चतुर्होतकं सन्तम् चतुर्होतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् त्वं वै मेनेदिष्टगमहोतप्रत्यशोषीः वैनानाख्यातार इति तस्मान्महैनायुश्चतुर्होतार इत्याचक्षते तस्माच्छुश्रूत्यानागं हृद्यतमः नेदिष्टो हृदयतमः नेदिष्टो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद अतिथिर्दुरोणे मन्नो यज्ञं वयाहि विद्वान् विश्वा अग्नेभियुजो विहत्य शत्रो यतामाभरा भोजनानि अग्ने सद्धमहते सौभगाय तव जुम्नान्युत्तमानि सन्तो सञ्जात्मकृणुष्व शत्रो यतामभिषामहागुंसि अग्नेयो नाभिदोषणः त्रिकोवारोजिघागुंसति आगस्त्वं वृत्रहन्दिहि स्वस्वस्रभ्रमाभरा अग्नेयो नोभिदासति समानो यस्य निश्चयः विद्मस्येव प्रख्यायतः मातस्योच्छेदिन्द्राभिभूरसि देवो विज्ञातवीर्यः पुत्रः पुरुषेतनः अपप्राज इन्द्रविश्वागम् अमित्राणे अपापाच अभिभूतेऽनुदस्व अपोदि च अपसूराधरा च भूरौ यथा तव शरणं नदेम तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृद्धाय हन्तवे सवृषा वृषभो भवत् युजैरसङ्गवेषणकं हरिभ्याम् उपब्रह्माणि नमस्व विबाधिष्ठास्वरोडसी महित्वा इन्द्रो वृत्राण्यप्रतीजघन्वान् अभ्यवाहमभिमादिशाहम् रोचनो रोचमानः शोभमानः कल्याणः లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును
రిమపమప పనిపమప రిమపమప పనిపమప నిస నిసరి మపని నిస చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము ఊపచన్ను గొప్పలివి భూజగుండలు చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము ఊపచన్ను గొప్పలివి భూజగుండలు తీపుల మోవి తేనెలు తీరని మధుపర్కములు తీపుల మోవి తేనెలు తీరని మధుపర్కములు దాపుగ పెండ్లి ఆడరయ్యా తగుదగు మీకును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు మేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు మేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు కాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు ఘాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు నీటున పెండ్లి ఆడరయ్యా నెరవేరే మీకును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో ఆడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు ఆగిన శ్రీ వెంకటేశ అలమేల్ మంగ నీవు ఆగిన శ్రీ వెంకటేశ అలమేల్ మంగ నీవు వీగక పెండ్లి ఆడవయ్యా వేడుకాయ నీకును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో ఆడెదమిదే
हव्यवाहमभिवादिषाहम् रक्षोहनमृतनासि जिष्णौ ज्योतिष्मन्तन्दीज्यतम् पुरन्धिम् अग्निग्स्विष्टकृतमाहुवेम स्विष्टमग्ने अभिजत्पृणाहि विश्वादेव प्रदना अभीष्य पुरन्नः पन्थान् प्रतिसन्विभाहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरन्न आयः त्वामग्ने हविष्मन्तः देवं मर्ता स ईडते मन्ये त्वा जातवेदसं साहव्यावक्ष्यानुषके विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुं न नावादुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानः अस्माकं बोध्यपिता तनूनाम् पूषागा अन्वेतुनः पूषा रक्षत्पर्वतः पूषा वाजगुंसनोतुनः पूषे मा आसा अनुवेद सर्वाः सो अस्माकमभयतमेन नेषते स्वस्तिदा गृणिः सर्ववीरः अप्रयुच्छन् पुरयेत प्रजानन् त्वमग्ने सप्रथा असि चुष्टोः तावरेण्यः त्वया यज्ञं वितन्वते अग्निरक्षागुंसिषेधति शुक्रसो चिरमत्यः श्रुतिपावकयीज्यः अग्ने रक्षा नो अगुंहसः प्रतिष्मदे वरिषतः तपिष्ठैरजरोदः अग्नेः गुंसिन्यत्रिणः दीज्यन्मत्येष्वा स्वेक्षये शुचिव्रता आवातवाहि भेषजम् विवातवाहि यद्रपः त्वगो हि विश्वभेषजः देवानां दूतयीयसे द्वाविमौ वातौ वातः आसिन्धोरापरावतः क्षं मे अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रपः ततो वादते गृहे अमृतस्य निधिरहितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो मह आवः वात आवातु भेषजम् शम्भोर्मयो भोर्नो हृदे तण आयोगुंसितारिषते त्वमग्ने अयासि अयासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिषे अयानो देहि भेषजम् इष्टो अग्निराहुतः स्वाहा कृतः पिबर्तुनः स्वगा देवेभ्य इदं नमः कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राटे को विराजति स इदं प्रतिपप्रथे ऋतोनुत्सृजते वसी कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेत प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रदीक्ष्याकवयो मनीषा त्वया मन्यो सरसमारुचन्तः हर्षमानासोऽधिषदामरुत्वः तिग्मेषव आयुधा सगुंसिसानाः उपप्रयन्ति नरो अग्निरूपाः मन्युर्भगो मन्युरेवासदेवः मन्युर्होता वरुणो विश्ववेदाः मन्यं विषयीडते देवयन्तीः पाहि नो मन्यो तपसा श्रमेण त्वमग्ने व्रतभृत्सुचिः देवागम् आसादया इह अग्ने हव्याय वोढवे व्रतानुबिभ्रद्व्रतपा अदाभ्यः यजानो देवागम् अजरः सुवीरः दधद्रत्नानि सुवीरानो अग्ने उपायनो जीवसे जातवेदः चक्षुषो हेते मनसो हेते वाचो हेते ब्रह्मणो हेते यो वायुरभिलासति त्वमग्ने मेऽन्या मेनिं कृणु यो मा चक्षुषा यो मनसा यो वाचा ब्रह्मणा वायुरभिदासति तयाग्ने त्वं मेऽन्या अमुम मेनिं कृणु
यत्किञ्चासो मनसा इच्छवाचा यज्ञेद्युहोति हविर्भिः तन्मृत्युर्निरित्या संविधानः पुरादिष्टादाहुतीरस्य हन्तु यातुधानानिरितिरादुरक्षः ते अस्य घन्वनुतेन सत्यम् इन्द्रेषिता आद्यमस्य वत्सन्तो आदत्समृद्धियदसौ करोति अन्मिदेहं कृतो हविः यो मे घोरमतीकृतः अपाञ्चौतौ बाहु अपनक्याम्यास्यम् अपनक्यामिते बाहु पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ